Hello, my dear friends. Once again, I, Praveen Dubey, welcome you all to RBS Classes, the Pariksha Guru. And as you know that notifications of TGT, PGT, UP, Madhyamik has been released for you. And this is a great opportunity to have success, to own success. And in order to get success, you must watch, like, subscribe, share this channel, and don't forget pressing bell icons in order to get all the notifications. Most of the candidates wait for advertisement or the notifications regarding the vacancies, and that now you have. Now your job is to join the classes and you must concentrate your studies that will take you to your destination. And for that, forget everything. Memorize just your course. Be attentive, be determined, be devoted, and get success. Now you don't have much time. Now you don't have time to waste. You have very less time and you have to put your feet on your pedal and press it to increase your speed. The course is very lengthy, but if you are smart enough, you must memorize your course and study it well according to your need. Actually, you don't need flood of knowledge. You know, you need smart knowledge. You have to labor first, but I would like to suggest you that don't labor it physically, labor it mentally. You need smart labor. You know? So smartness is required. Smartness is required in order to reach your destination. If you people are preparing for TGT and PGT, Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board has given you a great opportunity to make your life successful. But what can you do for this? Now the time is to decide. And today I have brought for you a very important and world famous topic. And in TGT and PGT both you find at least 2-3 questions from this very topic. In TGT you can find more than 3 questions on this topic only that I have brought for you today. So be very attentive with the topic that I have brought for you today, and the topic is a great play, a great drama, a great story by William Shakespeare, and that is Hamlet. Now I shift to the topic, and that is Hamlet. Hamlet. Hamlet is a tragedy by William Shakespeare, and that is why it is called Shakespearean tragedy. If it is asked, अगर आपसे पूछा जाता है that in which genre जिसे आमतौर पर लोग प्रोनाउंस करते हैं genre, it is not genre, it's a genre. In which genre
दिस हैज बीन रिटन, ये जो हैमलेट है किस जा में लिखा गया है, तो आपको इसका जवाब देना है इट इज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। These are the facts. First, we'll go through the facts, and only after that we'll start discussing its philosophy, its story, its plot, its characterization, its criticism. All these things we'll discuss only after going through the facts. केवल पहले facts जान लें. That the very first thing you came to know that its ja is Shakespearean tragedy. Its full name. Full name. Its full name is The Tragedy of Hamlet, the Prince of Denmark. The Prince of Denmark. Full name or the full title, name you can convert it with the title. Full title of the play is The Tragedy of Hamlet, the Prince of Denmark, and it has been shortened. It is often shortened as Hamlet. कुछ चीजें यहां आपको पता चल गई कि the full title of the play Hamlet is The Tragedy of Hamlet, the Prince of Denmark, and it is mostly shortened, इसे छोटा कर दिया जाता है as Hamlet, and it has been written in the genre Shakespearean tragedy. And now date. अगर हम डेट की बात करें when it was written and when it came to be published, so अगर डेट की बात करें तो ये स्थिति बनती है, कौन सी डेट? It was composed somewhere between 1599 and 1601. 1599 and 1601. Originally, it was published in 1603, but in a collection it was for the first time published in a collection for the first time it was published in the first folio in 1623. As you know that first folio was a collection of plays by William Shakespeare that came in 1623
This was the first time when Shakespeare's plays came to be found in collected form. And in this folio, all the plays of William Shakespeare except one, and that was Pericles. केवल एक पेरिक्लीज ऐसा नाटक था जो इसमें नहीं था, and all other 36 plays were there in the first folio. And first folio came in 1623. So, Hamlet in a collected form with other plays by William Shakespeare for the first time came in 1623, but it was originally published in 1603 while it was composed in 1599 or between 1599 and 1601. Now, these are the facts. ये सारे facts हैं, ध्यान रहे आपको. Now, Hamlet is considered to be the longest play by William Shakespeare. This is again a big fact that Hamlet is considered to be the longest play by William Shakespeare with 4042 lines and 29,551 words. This is important fact because individually you are studying Hamlet. Hamlet is the longest play of William Shakespeare it consists of 4042 lines and 29,551 words. Now you can see that really it is the longest play by William Shakespeare, consisting of 4042 words, 4042 lines and 29,551 words. The source. The source of Hamlet. Hamlet का स्रोत क्या है? What is the source of Hamlet? The same play with the same story almost was written by Thomas Kidd. Thomas Kidd ने लिखा था एक प्ले जिसका नाम था Hamlet. एकदम यही प्ले था, ऐसे ही था वो. लेकिन तब वो हैमलेट नहीं कहा जाता था, उसका जो नाम उन्होंने दिया था वो दिया था स्पेनिश ट्रेजेडी. द स्पेनिश ट्रेजेडी. दिस प्ले वॉज बाय टॉमस किड एंड द टाइटल वॉज द स्पेनिश ट्रेजेडी. लेकिन दैट वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिवेंज. वो भी एक तरीके का रिवेंज था. एंड थ्रू the Spanish tragedy, Thomas Kidd brought a new kind of play, and that was a revenge tragedy, and William Shakespeare followed that, imitated that, perhaps. शायद इसको imitate किया. लेकिन that could not be considered as the source of Hamlet. Hamlet का source नहीं माना जा सकता उसे, हालांकि कुछ
लोग कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि वो भी एक सोर्स हो सकता है, थीम वहीं से लिया गया है, थॉट वहीं से लिया गया है, बट आई डोंट कंसीडर सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। द सोर्स ऑफ हैमलेट, अब ऐसे आप देखेंगे जेन्युइन चीज, द स्टोर द स्टोरी ऑफ हैमलेट has been derived from the legend HAMLET. Look at the spelling, HAMLET. Preserved by a 13th century chronicler, इतिहास लिखते हैं, chronicler Saxo Grammaticus. Saxo Grammaticus in his Gesta Danorum. These are the important things. ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। हैमलेट से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मोस्टली उसके सोर्सेस के बारे में पूछे जाते हैं, डेट्स के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, और अब लॉन्गेस्ट प्ले है तो दैट इज अ हिस्ट्री इन इटसेल्फ, दैट इज वेरी पर्टिकुलर इन इटसेल्फ, अपने आप में पर्टिकुलर है। सो दीज आर द फैक्ट्स यू मस्ट नो। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले of William Shakespeare. It consists of 4042 lines and 29,551 words. और सोर्स ऑफ हैमलेट इज, मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि जो टॉमस किड का प्ले बिल्कुल हैमलेट जैसा था, द स्पेनिश ट्रेजेडी दैट स्टार्टेड द रिवेंज कॉन्सेप्शन इन प्लेज, कुछ लोग उसको मानते हैं, बट दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट राइट। तो सही है, द सोर्स ऑफ हैमलेट इज द स्टोरी ऑफ हैमलेट हैज बीन derived from HAMLET, which was preserved by 13th century chronicler Saxo Grammaticus in his Gesta Danorum. ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको आप कतई मत भूलिएगा। अगर कोई पूछे इन विच लैंग्वेज इट वाज रिटन, तो लैंग्वेज किस प्रकार की है, तो आपको कहना है कि जो लैंग्वेज है इसकी लैंग्वेज है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। अर्ली modern English. Early modern English. So these are the common facts that you must know and you have come to know. Now, for time being, we'll see its characterization. Characterization. As you know that William Shakespeare is basically known for 2-3 things. The very first thing that he is known for is universalization. Whatever he said, that was universal. That was long before right, that is right even today, and that will be right in the time to come. आने वाले समय में वो बातें सत्य होंगी, आज सत्य हैं और कल भी सत्य थी। And even the common things are universalized by William Shakespeare, and that is his capacity. और यही उनका सामर्थ्य है, यही उनकी कैपेसिटी है।
सेकंड थिंग इज ड्रामेटाइजेशन, किस तरीके से नाटकीकरण करते हैं, नाटक को किस तरीके से नाटक के पैटर्न में वो ढालते हैं। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट्स विलियम शेक्सपियर नेवर डिड एनीथिंग डिफरेंट बट ही डिड द थिंग्स डिफरेंटली। विलियम शेक्सपियर ने अपने पूरे जीवन काल में कुछ भी भिन्न नहीं किया, नया नहीं किया, लेकिन हर चीज उन्होंने भिन्नता से किया। उसी कॉमन चीज को उन्होंने अनकॉमन बना दिया। ही मेड द थिंग्स अनकॉमन, उन्होंने चीजों को अनकॉमन बना दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज पावर ऑफ ड्रामेटाइजेशन, हिज पावर ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, एंड द थर्ड इज हिज पावर ऑफ कैरेक्टराइजेशन। एज यू नो दैट इन शेक्सपियरियन प्लेज, स्पेशली इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, character is the most important element, while in Aristotelian plays it was plot that was called the soul of tragedy, जिसे हम ट्रेजेडी की आत्मा कहते थे। सोल ऑफ ट्रेजेडी क्या थी? वो थी प्लॉट। लेकिन यहाँ कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बिकॉज द डिक्टम सेज, जो डिक्टम है वो कहते हैं कैरेक्टर इज डेस्टिनी, डेस्टिनी कैरेक्टर, कैरेक्टर ही डेस्टिनी है और डेस्टिनी ही कैरेक्टर है। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, केवल कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। important characters. We are not going to discuss the characters in details. Why? Because this is a period, and in a period of 60 minutes we cannot cover this play in details. But important characters I am going to discuss, and only after that we'll start discussing plots, and the explanation will do, the philosophy will search for, and all these things will try to see. Characters, important characters. As you know that the setting of this play is Denmark. मैंने पहले लिख दिया था The Prince of Denmark. इसका मतलब the story has been set in Denmark. इसकी जो कहानी है वो डेनमार्क की है। ठीक है, कहाँ की कहानी है? डेनमार्क की है। तो कैरेक्टर्स मोस्टली वहीं से बिलोंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो जो पहला महत्वपूर्ण कैरेक्टर आता है वो है हैमलेट। हैमलेट कौन है? द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का ये राजकुमार है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में द प्रोटैगोनिस्ट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम हाई डिग्री। प्रोटैगोनिस्ट हमेशा ऊंचे समाज से लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ओनली टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, जिससे ऑडियंस के अटेंशन को ड्रा कर सके और जो प्ले हो वो पॉपुलर हो सके। ठीक है, हैमलेट। हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और ये सीनियर हैमलेट, जब प्ले शुरू होता है तो उनकी डेथ हो चुकी है, उनका ये बेटा है। तो जो हैमलेट के पिता हैं, सीनियर हैमलेट, उनको मैं कैरेक्टर के रूप में नहीं लिखूंगा क्योंकि वो केवल घोस्ट बन के आते हैं, भूत बन के आते हैं। बट सीनियर हैमलेट इज एन एब्सेंटी फादर टू हैमलेट। हैमलेट के लिए वो एक एब्सेंटी फादर हैं, मतलब है नहीं फिर भी हैं। नेक्स्ट, ऐसे देख लीजिए। Claudius. Who is this Claudius? Claudius is the uncle of Hamlet's uncle, Hamlet's uncle, and now his mother's husband. अभी जब आप कहानी पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो कि क्लाडियस ने अपने भाई का मर्डर किया हुआ है छुपे तौर पर, और गद्दी हथियाने के लिए उसने उनकी पत्नी से शादी कर लिया है। द थर्ड इज गर्ट्यूड।
the King of Denmark. The King of Denmark as well. ये King of Denmark भी हैं अब. Gertrude, the mother, Hamlet's mother. Hamlet's mother. And now Claudius's wife. Next, Polonius. Ophelia's father. And senior counselor of Claudius. बहुत ही पॉपुलर फिगर है. And senior counselor of Claudius. Ophelia. Polonius's daughter and Hamlet's beloved. Next, Laertes, Ophelia's brother. Who studies in France. Who studies in France. Horatio. Hamlet's friend. There are other characters, but they are not as important as the characters on the board. जो बोर्ड पर कैरेक्टर लिखे गए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कौन कौन है? बोल्टिमैन एंड मार्सेलियस, गाइल्डस्टर्न एंड रोसेनक्रेंच. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, लेकिन हैं, काम भर के हैं. अब देखिए ये सब करते क्या है, दैट विल कम टू नो नाउ. For time being, now we'll discuss its plot. Like other of Shakespearean tragedies, this tragedy consists of 5 acts. यहां देखिए, like other tragedies of Shakespeare, this tragedy, Hamlet, consists of
5 acts. 5 acts. The protagonist means hero dies in the 5th act. 5वें एक्ट में प्रोटैगोनिस्ट की डेथ होती है, मतलब हैमलेट की जो डेथ होगी वो कब होगी? 5वें एक्ट में होगी। ठीक है, ओके। अब इट्स स्टोरी इन अ नटसेल, बहुत छोटे में इसकी कहानी। ओनली आफ्टर दैट विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट्स फिलॉसफी एंड क्रिटिसिज्म। This play consists of 5 acts and the first act, when the play begins, तो इसके बैकग्राउंड में क्या है कि जो हैमलेट है, आपका जो हीरो है, आपका जो प्रोटैगोनिस्ट है, उसके जो पिता थे सीनियर हैमलेट, कुछ साल पहले उन्होंने एक नेबरिंग कंट्री थी वहां या है, एंड दैट इज नॉर्वे। डेनमार्क की नेबरिंग कंट्री नॉर्वे है। नॉर्वे का एक राजा था 14 वर्ष, केवल सुन लीजिए, उसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा चीजों से। उसको एक बैटल में इन्होंने मारा था, जान से मार दिया था। द सीनियर हैमलेट्स फादर किल्ड द किंग ऑफ नॉर्वे, अ नेबरिंग कंट्री, इन अ बैटल some years before या some years back, some years ago। हालांकि राजगद्दी बाद में उसके भतीजे के पास चली गई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर बना हुआ है इन लोगों को कि हो सकता है बदला लेने के लिए नॉर्वे इनके ऊपर अटैक न कर दे। इसलिए जो स्टार्टिंग है, द कमेंसमेंट ऑफ दिस प्ले इज जस्ट द प्रिपरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, चारों तरफ हथियार बनाए जा रहे हैं, सेनाएं बिल्कुल सुसज्जित हैं, तैयार हैं, तो युद्ध का माहौल है। और उसी समय एक घटना घटती है दैट द किंग क्लाडियस, जो तब किंग नहीं था अब किंग है, तो जो क्लाडियस है वो अपने भाई जो डेनमार्क के राजा होते हैं, जिनका नाम होता है हैमलेट, सीनियर हैमलेट जिन्हें हम कहें क्योंकि उनके बेटे का नाम भी हैमलेट है, तो जो सीनियर हैमलेट थे वो अपने भवर में, अपने जो है बगीचे में, लान में सो रहे थे, और उनके कान में उसने जहर डाल दिया। उनकी मौत हो जाती है और साम्राज्य में ऐसी सूचना दी जाती है, ऐसा कुछ फैलाया जाता है कि सीनियर हैमलेट की मौत सर्प काटने से, सांप ने काट लिया। इट वॉज बिकॉज ऑफ द सर्पेंट्स बाइट दैट द सीनियर हैमलेट, द किंग ऑफ डेनमार्क, डाइड। और ऐसा कुछ र्यूमर फैलाया जाता है साम्राज्य में कि अब चूंकि राजगद्दी खाली हो गई है, इसलिए जो पड़ोसी राज्य है नॉर्वे, पड़ोसी देश है, वो हमला कर सकता है डेनमार्क पर, इसका फायदा उठा सकता है। ही कुड टेक, और द कंट्री कुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। इसलिए इमीडिएटली गद्दी पर कोई बैठना चाहिए। और क्लाडियस ने हैमलेट की पत्नी, सीनियर हैमलेट की पत्नी और हैमलेट की मां, जिसका नाम होता है गर्ट्रूड, उससे शादी करने को कहता है कि अगर हम शादी कर लेंगे और फिर हम गद्दी पर बैठ जाएंगे तो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। और कंट्री जो है बगल वाली नेबरिंग कंट्री, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमला कर सके। ठीक है। And it is sometimes said that in this conspiracy in which senior Hamlet came to be killed because of pouring poison into the ear of senior Hamlet, ऐसा कहा जाता है कि इस षड्यंत्र में हैमलेट्स मदर गर्ट्रूड वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। इसमें हैमलेट की मां जो गर्ट्रूड थी वो भी शामिल थी, ऐसा कहा जाता है। एंड हैस्टी मैरिज एक्चुअली टुक प्लेस। बड़ी तीव्र गति से एक शादी हुई, मतलब उधर 13वीं समाप्त नहीं हुई, फ्यूनरल समाप्त नहीं हुआ सीनियर हैमलेट का, बड़ी तेजी से शादी होती है। अब हैमलेट, आपका जो हैमलेट है हीरो, ये देखिए आप, हैमलेट जो है स्टडीज
in Wittenberg University. Hamlet studies in Wittenberg University. क्वेश्चन पूछा जा सकता है that in which university Hamlet studies? To Wittenberg University. And what is the age of Hamlet? It is a controversial matter and it has been given nowhere. कुछ लोग ज्यादा उम्र के मानते हैं, कुछ लोग तो 13 साल का ही बोल देते हैं उसे। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है कि 13 साल का बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन जो हमारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कभी कभी चांस दे दिया जाता है। और वैसे भी ये प्रिंस थे तो हो सकता है मौका मिल गया हो, लेकिन यू मस्ट नॉट बी श्योर ऑफ हिज एज, उसके एज से श्योर नहीं होना है। तो उस फ्यूनरल में हिस्सा लेने के लिए, अपने फादर के फ्यूनरल में हिस्सा लेने के लिए हैमलेट वाज कॉल्ड, और हैमलेट के साथ उसका एक मित्र भी आया है जिसका नाम है होरेशियो। ये लोग, होरेशियो जो है believes in मेटाफिजिक्स। तो होरेशियो जो है वो हैमलेट का मित्र है और वो मेटाफिजिक्स में विश्वास रखता है। वो खुद कहता है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं, फिर भी वो हमारे ऊपर असर करती है, प्रभाव करती हैं। ठीक है, तो जो ये होरेशियो है ये साथ में आया हुआ है इन ऑर्डर टू अटेंड द फ्यूनरल ऑफ हैमलेट्स फादर। लेकिन जस्ट आफ्टर फ्यूनरल द हेस्टी मैरिज ऑफ क्लाडियस एंड हिज मदर, मीन्स टू से द मदर ऑफ हैमलेट, टेक्स प्लेस। अब जो हैमलेट है ही इज नाउ कंफ्यूज्ड कि अगर उसकी मां को उसके पिता से प्यार था या उसके चाचा को उसके पिता से लगाव था, तो इतना हेस्टी मैरिज क्यों? हालांकि उसके चाचा ने अपना लॉजिक दिया था कि हमला हो सकता है, ठीक है, लेकिन चूंकि हैमलेट बहुत बुद्धिमान है, हैमलेट इज हाईली इंटेलेक्चुअल, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी फ्रैंकली दैट द इंटेलेक्चुअलिटी लीड्स टू एब्स्ट्रैक्शंस ओनली। जब आप बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं तो जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तब आप केवल सोचते रह जाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के प्रोसेस में चले जाते हैं, केवल भाव में बहते चले जाते हैं, एंड एक्चुअली यू डू नथिंग, और वास्तव में आप कुछ नहीं करते हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट हैमलेट स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट, हैमलेट स्टार्टेड कंटेम्पलेटिंग अ लॉट। वो बहुत कुछ ग्रीफ अपना व्यक्त करता है, कहता है कि अभी दुख समाप्त नहीं हुए थे कि खुशियां उसको फॉलो करने लगी। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? एक दिन दो संतरी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं रात को। क्या बातचीत कर रहे होते हैं कि आजकल एक भूत देखा जाता है। अ घोस्ट नॉर्मली अपीयर्स एग्जैक्टली एट द मिडनाइट, ठीक आधी रात को देखा जाता है, और देखने में बिल्कुल सीनियर हैमलेट जैसा दिखता है। तो उन लोगों ने सबसे पहले इसकी सूचना किसको दी? होरेशियो को, क्योंकि वो जानता था कि होरेशियो हैमलेट का फ्रेंड है, तो वो हैमलेट को बताएगा। पहले हम लोग इसको दिखा दें। तो होरेशियो पहले विश्वास नहीं करता है, लेकिन कहता है ठीक है, मैं रात को आऊंगा देखने कि वास्तव में भूत आता है। तो रात को होरेशियो और बट जो बर्नार्डो थे, मसलस थे, ये लोग भूतों को देखते हैं। एंड नाउ दे डिसाइडेड दैट दे वुड टेल दिस मैटर टू हैमलेट, हैमलेट को बताएंगे। हैमलेट को ये बताया जाता है तो हैमलेट पहले भरोसा नहीं करता है, लेकिन वो कहता है मैं खुद विटनेस करूंगा, खुद देखूंगा, खुद गवाह बनूंगा, तब मानूंगा। हैमलेट खुद तैयार होता है देखने के लिए हैमलेट, सीनियर हैमलेट के भूत को। अब रात को जो भूत आता है, हैमलेट भी उसे देखता है। हालांकि वो सीनियर हैमलेट का जो भूत था वो किसी से बात नहीं करता था, लेकिन जब हैमलेट को देखा उसने, तो उसने कहीं अलग चलने के लिए इशारा किया। ही बेकन्ड, बेकन्ड मतलब ऐसे इशारा किया कि चलो उधर, तुमसे कुछ बात करनी है। हैमलेट कहता है ठीक है।
हालांकि उसके मित्र होरेशियो और दो सेंट्रीज उसको रोकते हैं जाने से कि ये भूत है, बुरी आत्माएं हैं, कुछ बुरा कर सकती हैं, बट Hamlet was determined to explore the causes of the death of his father, senior Hamlet. सीनियर हैमलेट के अपने पिता के मृत्यु का वो कारण जानना चाहता था और वो गया, दूर गया। घोस्ट कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं, एंड आई हैव नॉट गॉट अ नेचुरल डेथ, आई हैव बीन मर्डर्ड, मेरा कत्ल हुआ है, एंड योर मदर एंड योर अंकल are responsible for this conspiracy and this murder. But don't torture your mother, but avenge my death against your uncle. कहता है कि अपने अंकल को मत छोड़ना, बदला जरूर लेना, लेकिन माता को टॉर्चर मत करना, क्योंकि मैं उसे प्यार करता था। This. Now the conflict begins. Two sorts of conflicts begin right from here. Internal conflict and external conflict. This is psychological play, and this is why internal conflict is more important than external conflict here. Now, Horatio and Hamlet are determined to know the genuine reason of Hamlet's father's death. The death of Hamlet's father. कैसे जानेंगे? कोई बताएगा तो वैसे है नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो Hamlet एक प्लानिंग करता है, दैट्स आई विल हैव एन एंटीक डिस्पोजिशन ऑन। ये देखिए Hamlet जो कहता है Hamlet says that he will put an antique डिस्पोजिशन ऑन, मतलब वो बहुत अब गड़बड़ तरीके से रहेगा, बड़ा ही एकदम पागलों जैसा रहेगा, अपने आप को पागल सिद्ध करेगा, क्योंकि उसका मानना है कि पागल के सामने कुछ भी बोलने से लोग डरते नहीं हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो बोले, नो प्रॉब्लम। उसे पता चल जाएगा, गलती हो सकता है वो सही बात बोल दे। तो ही स्टार्टेड प्रिटेंडिंग टू बी मैड, वो बहाना करने लगता है कि वो पागल है, बहाना करता है कि वो पागल है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि रियली ही हैड गॉन मैड, वो पागल हो ही गया था। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब इसी दौरान लेयरटेस को अनुमति दी जाती है। लेयरटेस मतलब पोलोनियस का जो बेटा, उसको अनुमति दी जाती है। क्लाडियस अपने दरबार में कहता है कि लेयरटेस नाउ यू कैन गो बैक टू फ्रांस फॉर योर स्टडीज, अपने अध्ययन के लिए तुम वापस जा सकते हो। धीरे धीरे उसे अब गद्दी मिल गई, आगे की बात सोचेगा, वो क्यों जो है इधर उधर की बात सोचेगा। तो लेयरटेस कहता है ठीक है। पोलोनियस जाते जाते उसे बहुत बड़ी सी एक लंबी सी स्पीच देता है सजेशन के रूप में। उसमें वो कहता है नाइदर बी अ बारोअर नॉर बी अ लेंडर। ये देखिए उसकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कही पोलोनियस ने। कभी किसी से कर्ज लो मत और कभी किसी को कर्ज दो मत। इसी स्पीच में वो कहता है डोंट ट्राई एवरीथिंग बट डोंट बी एडिक्ट ऑफ एनीथिंग। जीवन में हर चीज को एक बार ट्राई जरूर करो, लेकिन एडिक्ट मत बनो कि बिना उसके तुम्हारा काम ही ना चले। कहता है जो आपके कपड़े होने चाहिए, योर ड्रेस मस्ट बी जेन्युइन, डिसेंट बट नॉट गॉडी। गॉडी बहुत लाल पीला नीला चमकने वाला, ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कहता है। एक महत्वपूर्ण बात जो कहता है, बहुत अच्छी बात बोलता है, लेकिन वो खुद उसको फॉलो नहीं करता। कहता है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये देखिए, ये एग्जाम में भी पूछा गया है क्या। ब्रेविटी इज
द सोल ऑफ विट। वो कहता है कि जितने कम में कोई बात कही जाए वही बौद्धिकता है। वास्तव में बुद्धिमत्ता की आत्मा है कि कितने शार्ट में आप कोई बात कहते, जबकि वो खुद शार्ट में कोई बात नहीं कहता है। तो पोलोनियस की स्पीच आप जब पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन वहां से मिलने की उम्मीद होती है। फिर लेयर्टस जाता है, चला जाता है। अब देखिए, हैमलेट प्रेटेंड्स टू बी अ मैड, और पागल होने का नाटक करता है, और अपना प्रेम ओफिलिया मतलब जो पोलोनियस की बेटी है उसके सामने वो प्रदर्शित करता है। बहुत कुछ उसको पत्र उत्तर लिख के देता है। पोलोनियस जाके राजा से कहता है, क्लाडियस से, कि आपका भतीजा जो है ऐसे ऐसी हरकतें कर रहा है। तो कुछ हद तक साबित होता है कि शायद वो पागल होने के नाते ऐसा कर रहा है। पिता की मौत के कारण उसके मनोदशा पर बहुत बड़ा आघात हुआ है, जिसके कारण वो ऐसा हो गया है। अब जो आपका हैमलेट होता है वो अपनी मां के चैम्बर में जाता है और उसको बहुत तेजी से डांटता है, झगड़ा करता है, दैट यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ माय फादर, दैट यू परहैप्स कंस्पायर्ड द डेथ ऑफ माय फादर। बहुत कुछ कहता है। और मां और बेटे में क्या बात हो रही है इसको सुनने के लिए पोलोनियस को क्लाडियस ने टेपेस्ट्री के पीछे छुपा रखा था। अब पोलोनियस को ऐसा लगता है कितने ज्यादा गुस्सा में है हैमलेट कि वो अपने पिता को, अपनी माता की हत्या कर सकता है। इसलिए हेल्प के लिए जैसे ही चिल्लाता है तो हैमलेट को लगता है कि क्लाडियस पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। वो अपनी तलवार निकालता है और राइट राइट कह के उसकी हत्या कर देता है। बाद में उसे पश्चाताप होता है कि अरे क्लाडियस को समझकर मैंने पोलोनियस की हत्या कर दी। फिर उसको ड्रैग करता हुआ वो ले जाता है बाहर। ठीक है, तो ये सारी बातें। अब पोलोनियस की मौत के बाद ओफिलिया पागल हो जाती है लगभग। जो एल्सिनोर है, एल्सिनोर देखिए, ये क्या है, द रॉयल डैनिश कौशल। ये राजमहल का नाम है, डेनमार्क का जो राजमहल उसका नाम है एल्सिनोर। पागल होकर ओफिलिया एल्सिनोर में इधर उधर भटकती है, पूरी तरीके से पागल हो जाती है। पोलोनियस कहता है, गो एंड रिटर्न ऑल द लव लेटर्स ऑफ हैमलेट, हैमलेट के लव लेटर्स वापस कर दो। वो जाती है तो हैमलेट बहुत गुस्से में कहता है उससे, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सिनर्स, ये पूरी दुनिया पापियों से भरी हुई है। एंड इफ यू डोंट वांट टू बी अ सिनर, अगर तुम एक पापिनी नहीं बनना चाहती हो तो गेट दी टू अ ननरी, गेट दी टू अ ननरी। कैसे कहता है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकता है, गेट दी टू अ ननरी। तो कहता है इसे ले जाइए या जाओ तुम ननरी में जाओ। ननरी मतलब जहां भिक्षुएं रहती हैं। मतलब अगर वहां तुम जाओगी तो बच्चे नहीं पैदा करोगी, और अगर तुम बच्चे पैदा करोगी तो सारे बच्चे बाद में पापी बन जाएंगे। तो यू विल बी द ब्रीडर ऑफ सिनर्स, पापियों को पैदा करने वाली बनोगी। इसलिए चली जाओ, तुम जाके साधु बन जाओ। ठीक है, मतलब जो साध्वी बन जाओ जा करके। तो गेट दी टू अ ननरी, दिस इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय हैमलेट। हैमलेट इस स्टेटमेंट को देता है। सब कुछ ऐसे चलता रहता है। अब देखिए, हैमलेट को पक्का होना है कि उसके चाचा जिम्मेदार हैं मौत के लिए कि नहीं, उसके पिता के। उसको पक्का होना है, कैसे भी उसे पक्का होना है। अब उसे एक एक्टर्स की मंडली मिलती है, एक्टर्स की मंडली जो नाटक करते हैं। उनसे वो कहता है कि एक प्ले आप परफॉर्म करिए जिस प्ले में ठीक वैसी घटना घटे जैसे कि मेरे चाचा ने मेरे पिता को मारा है। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, जब भूत ने खुद बता दिया कि चाचा जिम्मेदार हैं मेरी मौत के, तो फिर वो क्यों नहीं मान रहा है? बिकॉज
हैमलेट इज हाईली इंटेलेक्चुअल और उसे लगता है कि इविल स्पिरिट विल क्रिएट इविल थिंग्स एंड गुड स्पिरिट विल क्रिएट गुड थिंग्स। बुरी आत्माएं तो बुरा ही चाह रही होगी, हो सकता है कोई बुरी आत्मा मैं राज्य का बुरा चाह रही हूं इसलिए गलत गलत बात बता रही हो, इसलिए उसे पक्का होना है। थ्रू दैट ड्रामा एक्चुअली हैमलेट वांटेड टू सी द रिएक्शन ऑफ हिज अंकल। उस ड्रामा से, जो वैसा ही ड्रामा जैसी घटना घटी थी, ऐसा कोई ड्रामा जिसमें वैसी ही घटना घटे दिखाना चाहता था और उससे वो रिएक्शन अपने अंकल का चेक करता और उससे पता करता कि वास्तव में ये जिम्मेदार हैं कि नहीं। तो एक ड्रामा वहां परफॉर्म किया जाने लगा, ड्रामा की तैयारी हुई। ड्रामा को कहा गया द माउस ट्रैप, मतलब चूहे को पकड़ने का एक तरीका, माउस ट्रैप। ठीक है, इसे कहा जाता है द प्ले विद इन द प्ले। द प्ले विद इन द प्ले, प्ले के अंदर प्ले है। और वो लोग कौन सा प्ले परफॉर्म करते हैं? द मर्डर ऑफ गेंजावो। और जब पोलोनियस की डेथ हो चुकी है तो उसका बेटा लेयर्टेस आता है इन ऑर्डर टू नो द रीजन, इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज लेने आता है। यहां प्ले की तैयारी हो रही है, प्ले चल रहा होता है। Hamlet is in the state of dilemma and always he faces a question to be or not to be, that is the question. Hamlet suffers the question to be or not to be, that is the question. इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं कि क्लाडियस को मार दूं कि ना मारूं, लेकिन इसका फाइनल अर्थ है कि क्या मैं सुसाइड कर लूं या ना सुसाइड कर लूं। इसका सही अर्थ यह है, he should commit suicide or not। ये है, इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से वो हमेशा झूलता रहता है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अब देखिए, इसी दौरान ओफिलिया पागल होके पानी में डूब के मर जाती है। ओफिलिया, क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी है, वो बहुत दुखी है। सूचना दी जाती है राजा को। अब सीन आती है दो ग्रेव डिगर्स की। दो ग्रेव डिगर्स हैं, वो सेक्सटन्स हैं। ग्रेव डिगर्स जो हैं, इसमें ग्रेव डिगर्स आते हैं। एक कौन है? अ कपल ऑफ सेक्सटन्स। ये कब्र खोद रहे होते हैं और कब्र खोदने के दौरान कुछ उन्हें स्किल्स मिलते हैं। उस पर शेक्सपियर अपनी फिलॉसफी हैमलेट के थ्रू दिलवाते हैं। कहते हैं इंसान चाहे जितना बड़ा हो, धनी हो, दौलत वाला हो, लेकिन उसका जो रास्ता होता है उसको इसी मंजिल तक ले जाता है कि बाद में उसे कीड़े मकोड़े खाते हैं। जब वो दफन हो जाता है तो अपने शरीर पर इतना ध्यान देता है वो, लेकिन एक दिन उसे कीड़े मकोड़े खाते हैं। बहुत अच्छी फिलॉसफी। ग्रेव डिगर सीन में थोड़ी सी क्या है, कॉमिक रिलीफ आती है, क्योंकि यहां बड़ी हास्यास्पद तरीके से दोनों ग्रेव डिगर्स बात कर रहे होते हैं। कॉमिक रिलीफ यहां देखने को मिलती है। ग्रेव डिगर इसी दौरान हैमलेट को इससे पहले वापस भेजना चाहते हैं क्लाडियस की जॉब पढ़ो लिखो, लेकिन दो स्पाइज के साथ जो वास्तव में हैमलेट के मित्र होते हैं उनके साथ एक लेटर वो इंग्लैंड के राजा को भेजते हैं कि हैमलेट बच के आना नहीं चाहिए, उसका मर्डर हो जाना चाहिए। लेकिन रास्ते में किसी तरीके से हैमलेट उस लेटर को पा जाता है और एक फोर्ज लेटर क्लाडियस को भिजवा देता है कि बिल्कुल ये बचेंगे नहीं, जबकि हैमलेट वापस आ जाता है। अब वो काफी कुछ जान चुका था क्लाडियस के बारे में कि वो हैमलेट को मरवाना चाहता है। अब
एक प्ले परफॉर्म किया जाता है, प्ले इज परफॉर्म्ड, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर द परफॉर्मेंस? When the same incident takes place in the murder of Genjago, what actually happens? The reaction of Claudius was a very different thing, and he left the chair and went somewhere else because he could not check the reaction. And now, with this reaction, Hamlet was 100% sure that Claudius is behind the murder of his father. Now he was determined to kill Claudius. Actually, Hamlet got a lot of chances to kill Claudius, but actually he wanted that the procrastination should take place because of his intellectuality. This play has been written on the theme of procrastination. Procrastination, delay. Procrastination, delay. इसका मतलब होता है delay. Always he searches for excuses to procrastinate the killing of his uncle. अब लेयरटेस भी गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है कि मैं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं हैमलेट को, और इसका फायदा क्लाडियस उठाना चाहता है। वो कहता है ठीक है, ही जस्ट प्रिपेयर्ड ऑफेंसिंग, मतलब उसने कहा युद्ध करिए आप लोग, ड्यूल, चलिए युद्ध करिए और जस्ट ट्राई टू रिमूव द डिफरेंसेस, जस्ट ट्राई टू रिजोल्व द डिफरेंसेस, देख लेते हैं आपस में आप लोग युद्ध करिए। प्लानिंग क्या थी? क्लाडियस ने लेयरटेस के साथ मिलकर एक प्लानिंग किया था कि मैं आपको एक जहर में डूबी हुई तलवार फाइल देता हूं और आप उससे जरा सा भी अगर हैमलेट को टच कर देंगे तो उसकी मौत हो जाएगी। और क्लाडियस की इच्छा क्या थी कि अगर ये नहीं टच कर पाता है और हैमलेट लेयरटेस को मार देता है तो हैमलेट को हम एक कप ऑफ चैलिस, जहर का प्याला पहले से भर के रखा होगा, उसे हम देंगे एप्रिसिएशन में कि आप जीत गए, लीजिए प्याला लीजिए, लेकिन उसमें जहर होगा और जब पिएगा तो मर जाएगा। कुल मिला के हैमलेट को मरना था। युद्ध शुरू होता है, सारे बैठे हुए हैं, हैमलेट की मां बैठी हुई है, क्लाडियस बैठे हुए हैं, एंड लेयरटेस युद्ध ठीक से लड़ नहीं पा रहा है हैमलेट के सामने, और इसी दौरान हैमलेट जीतता हुआ नजर आता है तो हैमलेट की मां गर्ट्रूड बगल में रखा हुआ जो चैलिस होता है उसको पी लेती है खुशी में, एंड शी स्टार्टेड डाइंग एंड अल्टीमेटली डाइज। हैमलेट को सारी कहानी पता चल जाती है, वो दौड़ के क्लाडियस की हत्या कर देता है, और उससे पहले उस फाइल से जब सोच रहा होता है हैमलेट, उसी फाइल से, उसी सोर्ड से लेयरटेस को घायल कर देता है, फिर ये लेयरटेस की हत्या कर देता है। मतलब लेयरटेस की डेथ हो गई, क्लाडियस की डेथ हो गई, गर्ट्रूड की डेथ हो गई, हैमलेट की डेथ हो गई, सब वहां डेथ हो जाती है, सबकी डेथ हो जाती है। और उसी दौरान पोलैंड जाता हुआ नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रस रुकता है, हैमलेट का सम्मान करता है। हैमलेट का मित्र होरेसियो भी सुसाइड करना चाहता है, लेकिन हैमलेट उसे रोकता है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हैमलेट डाइज इन द आर्म्स ऑफ होरेसियो। The last sentence spoken by Hamlet
इज, हैमलेट इज एग्जाम में आया हुआ है 2005 और 6 में, ये किसने बोला, फिर आ सकता है। द रेस्ट इज साइलेंस, ये हैमलेट बोलता है, द रेस्ट इज साइलेंस, मर जाता है इसकी बात बोल के। बाद में उसका एक रॉयल फ्यूनरल होता है, अच्छे से फोर्टिनब्रास ऑनर करता है, सम्मान देता है। देखिए कुछ बातें जो यहां कही जाती हैं महत्वपूर्ण। हैमलेट वाज सो intellectual, he was not enough to take decision, he was not enough intellectual enough to take decision, and he says, what a piece of work is man. This speech is very nice, Renaissance speech you can call it. This play deals with the revenge, ये revenge से deal करता है, revenge of Hamlet against Hamlet's uncle Claudius, who conspired the murder of Hamlet's father, senior Hamlet. Sometimes it is also said that Hamlet perhaps was suffering from Oedipal complex or Oedipus complex. What is Oedipus complex? When a son falls in love with his mother, जब एक बेटे को अपने मां से प्यार हो जाता है तब उसे हम इडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब एक बेटी को अपने पिता से प्रेम हो जाता है, वो प्रेम नहीं जो आमतौर पर हम देखते हैं, वो प्रेम जैसे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन जब हो जाए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये इधर डॉटर एंड फादर, इधर क्या है, सन एंड मदर। लेकिन इस तथ्य को हम डिनाई करते हैं क्योंकि अगर उसे अपनी मां से प्यार रहा होता तब तो क्लाडियस की हत्या वो तुरंत करता, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। द प्ले हैमलेट, देखिए स्टेटमेंट है, द प्ले इंपॉर्टेंट है, द प्ले हैमलेट has been called an artistic failure. इसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा है किसने, टी.एस. एलियट ने। कहां कहा है, इन हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। कहां कहा है, ये देखिए, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। When it was written in 1919. And if you want to go through Hamlet in details, so just try to study A.C. Bradley's Shakespearean Tragedy. Shakespearean Tragedy by A.C. Bradley. When it was written in 1904. All the four great tragedies of William Shakespeare have well been discussed in this critique. ये क्या है, एक क्रिटिक है। क्रिटिक का क्या मतलब है, क्रिटिक मतलब जब एक क्रिटिक कोई लिखता है कुछ किसी बुक के ऊपर, किसी राइटिंग के ऊपर उसकी आलोचना और समालोचना करता है तो उस बुक को हम क्रिटिक कहते हैं। जैसे ड्रामेटिस्ट ड्रामा लिखता है, नॉवेलिस्ट नॉवेल लिखता है, एसेइस्ट एसे लिखता है, पोएट पोएट्री लिखता है, वैसे ये क्रिटिक CRITIK क्रिटिक लिखता है। ठीक है, तो इसको आप यहां जाके अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं।
4 ग्रेट ट्रेजेडीज जो विलियम शेक्सपियर की थी, उसमें से पहली ट्रेजेडी थी हैमलेट, दूसरी थी ओथेलो, तीसरी थी किंग लियर और चौथी थी हैमलेट. दिस इज द फास्टेस्ट ट्रेजेडी, मीन्स मैकबेथ इज द फास्टेस्ट वन एंड सबसे तेज चलने वाली, एंड हैमलेट इज द स्लोवेस्ट वन. ये बहुत स्लो चलती है बिकॉज इट डील्स विद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. सो दिस मच टुडे, एंड Hamlet has been discussed here in details, but when we take admission, your notifications have been released. So start taking admissions, get our app and start taking regular classes. Thank you.